On. Okay. Now I'm going to rub. Question number 2. The first, second number is done. Third number. I'm going to read question number 3. Listen. Find the cube. Find the side of the cube whose surface area is 600. Very easy. You can do yourself. And I am giving hint for third number. Surface area of cube. Surface area means total surface area of cube is given. That is 600 cm square. 6 square. You know the formula? Total surface area of cube? Yes. What is? Yes, sir. Sir, 6a square. Sir, 6 square. Equal to 600. Yes, sir. Now, a square is equal to 600 by 6. It means 100. A is equal to under root 100, 10 cm. Okay. 10 cm है. You have to find out which surface area. Find the side of cube. The side of cube is this one. Side of cube. Is equal to A, that is 10 cm. Where is it? This one. Understood? Question number 3. Yes, sir. Yes, sir. Question number 4. Rukhsar painted the outside of the cabinet. Cabinet is shown in adjoining figure of this question. Rukhsar want to paint the outside of the cabinet. Cabinet is cuboidal. Length, breadth, and height is given. And surface area of cover it's painted all except the bottom. Bottom को नहीं पेंट कर रहा है, यानी ये क्यूबॉइडल जो शेप है उसमें बॉटम को छोड़कर बाकी सरफेस एरिया क्यूबॉइड का पेंट हो रहा है. तो आप इसमें पेंटेड एरिया के लिए क्यूबॉइड का कौन सा सरफेस निकालेंगे? टोटल सरफेस निकालोगे या टीएसए आप ओपन क्यूबॉइड निकालेंगे? जो फार्मूला है एक साइड जो खुला रहता है उसको ओपन क्यूबॉइड भी कहते हैं. सर टीएसए ऑफ ओपन. सर टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का ओपन क्यूबॉइड. फार्मूला थोड़ा एनीबॉडी इफ यू लर्न टेल मी द फार्मूला ऑफ टीएसए ऑफ ओपन क्यूबॉइड. Sir 2 into L plus B into H plus LB. Very good. You will use that formula and do. No need to solve this question. Students, you can do yourself. LBH is given and TSA of painted area is equal to TSA of open keyword is equal to 2 in bracket L plus B into H plus LB. ओपन कीवर्ड का फॉर्मूला रखिए, उसमें LBH की वैल्यू पुट कीजिए, जो एरिया आएगा वही वो हो जाएगा, आप फाइंड कर लेंगे. इट शुड बी लीव फॉर द होमवर्क. ये इट कैन बी गिवन एज होमवर्क. दिया जा सकता है कि नहीं? बोलिए. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Okay, you दिया will जा do सकता है. question number 4 is homework. Yes, sir.
Question number 5. Daniel is painting the walls of the ceiling of a cuboidal hall with length, breadth, and height 15, 10, and 7 cm respectively. From each of paint 100 मीटर स्क्वायर. देखिए, डेनियल कोई वॉल को पेंट करना चाहता है, उसका पेंट का जो कंटेनर है उसका LBH दिया हुआ है, क्यूबॉइडल कंटेनर है, उससे 100 मीटर स्क्वायर पेंट हो सकता है वॉल. पूछ रहा है इसमें कि हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल रिक्वायर्ड नीड टू पेंट द रूम, है ना. इस रूम को पेंट करने के लिए, रूम का LBH दिया हुआ है, उसको पेंट करने के लिए कितना कैन लगेगा. तो ध्यान से सुनिए, फर्श को पेंट नहीं करना है, वॉल्स एंड सीलिंग. वॉल्स एंड सीलिंग का मतलब क्यूबॉइड का कौन सा सरफेस कहा जाएगा? क्यूबॉइड का वॉल, 4 walls and ceiling, the surface area, you can tell the Open box. open box. Very good. Open height box and वाला breadth. एक साइड से खुला है, क्योंकि फ्लोर जो है LBH की एरिया होगी, इसको नहीं पेंट करना है. तो एक तरफ खुला है तो ओपन बॉक्स हो गया क्यूबॉइड का. तो ओपन बॉक्स का जो फार्मूला है वही आप लगाएंगे. तो आप लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 walls and ceiling is equal to 2 in bracket L plus B into H plus LB. यानी एरिया ऑफ ओपन बॉक्स वाला फार्मूला, फिर उसमें 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने कैन पेंट लगेंगे. तो चलिए इसको कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. And height of a room is equal to 15, 10 and 7 मीटर. रूम है कि हॉल है? रूम इतना बड़ा नहीं होगा, हॉल is equal to 15 cm, 15 meter, 10 meter and 15, 10 and 7. ठीक है. Now the TSA of 4 walls and TSA, total surface area of 4 walls and ceiling is equal to TSA ऑफ ओपन बॉक्स होता है, एक तरफ से खुला है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए, L plus B into H plus LB. 2 15 plus 10 into 7 plus 15 into 10 is equal to 225 into 7 plus 150 is equal to 50 into 7 plus 150 is equal to 350 plus 150 is equal to 500. 500 meter square. 500 meter square comes the area of 4 walls and ceiling. Try to understand up to this point. आप सभी लोग इसको देखिए ध्यान से, यहां तक समझ में आ रही कि नहीं. इसके बाद तो आप 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कैंस आ जाएगा. Students, tell me, are you understanding up to this point? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Number of cans required.
500, देखिए 500 मीटर स्क्वायर है और एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर पेंट होता है, ठीक ना? You will divide and 5 cans is required. 5 cans, answer. Okay. सर कांस का मतलब क्या होता है? कैंस मतलब डब्बा होता है, कंटेनर जिसमें पेंट रखा जा रहा है। पेंट में Yes, जिस sir. डब्बे में पेंट रखा जा रहा है ना, उसमें एक डब्बे पेंट से 100 मीटर स्क्वायर पेंट होता है। तो एरिया 4 वॉल्स, दिस रूम 4 वॉल एंड सीलिंग, आप ओपन बॉक्स के एरिया के बराबर होगा। तो वो आपने निकाला, इसको पेंट करना था, फर्श को तो पेंट नहीं करना है, इसलिए इसको लेफ्ट कर दिया। तो वो निकल गया 500 मीटर स्क्वायर, और एक डब्बे से 100 मीटर स्क्वायर पेंट होता है। तो कितने डब्बे पेंट चाहिए? यू नीड टू डिवाइड उस एरिया 4 वॉल को। एक डब्बे पेंट से कितने मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है? 100 मीटर। डिवाइड किया तो 5 कैंस चाहिए पूरे दीवार और सीलिंग को पेंट करने के लिए। ओके, लेट अस गो फर्दर, आगे बढ़े। बोलिए, हैव यू रिटन? आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. okay, question number 6 I am reading. Listen and try to understand. Describe how the two figures of a figures at the right are alike and how they are different. Which box has a larger lateral surface area? देखिए, मैं आपको बना रहा हूँ, फिगर बनाया है, फिर मैं बनाने जा रहा हूँ। फिगर बनाया जाएगा तभी समझ में आएगा। First of all, you draw the figure that is given in your book. Cylindrical and cuboidal. Question number 6 or 7. Question number 6. One cylindrical, another cuboidal. This cylindrical diameter and height is given. Diameter is given 7 cm and height is also 7 cm. Both are equal. And the cubical, another box that is given, cubical given 7 cm cube. Seven cm, and 7 cm is given. Two containers are there. The measurement is given in the figure. You have to find which container has larger lateral surface area, and also you describe about the two figures that at the they are different. How they are different? बताइए ये किस तरह different है? How the two figures are different? The height, one is By their cylindrical, lateral surface. one is cylindrical and another is cubical. Cuba. Both, huh? Yes, Height, sir.
सिमिलरिटी ये है कि लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है, इसका डायमीटर और हाइट सेम है, सिमिलरिटी है। तो डिस्क्राइब करना है कि इसमें आपको पहले ये बताना है हाउ दे आर डिफरेंट, डिफरेंट कैसे हैं। तो लिखेंगे एडजॉइनिंग फिगर, सर एडजॉइनिंग figures are different because one is cylindrical and other is cubical. Okay, one is cylindrical and other is cubical, so both figures are different. Okay, and which one has larger lateral surface area? You have to find out the LSA of both figures. Students, can you tell me LSA of first figure? What will be LSA of first figure? LSA of Sir, cylinder. Cylinder आप लिखिए, फर्स्ट फिगर है Sir, 2 pi RH. 2 pi RH. Very good. 2 pi RH. Then it will be 2 into 22 by 7 into R. That is R is 7 by 2. 7 by 2 होगा ना, डायमीटर 7 है, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 2 pi R and H is also 7. So 7 will cut to 7 and 2 will cut to 2 and 7 2 ja 14, 7 2 ja 14 और 115, 154 cm square LSA. LSA of cylindrical vessel is 154 cm square and LSA of cubical vessel, tell me, बताएं cubical vessel का LSA क्या होगा? LSA of cubical, टोटल सरफेस एरिया लिखे हैं। नहीं लेटरल पूछ रहा है ना, लेटरल में पूछ रहा ऊपर के लिए, ऊपर वाला है। ऊपर वाले में हम Sir, 4A square. लेटरल सरफेस एरिया लिखेंगे, Sir, 4A दोनों का square. लेटरल ही निकालेंगे, दोनों में लेटरल में पूछा है, टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा है। ओके, तो LSA आप क्यूबिकल कंटेनर क्या हो जाएगा बताइए? Sir, 4A square. 4A square. Sir, 4A square. 4A square, 4 into 7 का स्क्वायर, that is 4 into 49 is equal to 4 9 ja 36, 6 carry 3, 4 4 ja 16 और 3 19, 196 cm square. Which one LSA is less? कौन लेस है? सिलिंड्रिकल ना, सिलिंड्रिकल जो Yes, sir. उसका LSA लेस है, तो योर आंसर विल बी सिलिंड्रिकल. Therefore cylindrical LSA is less than cubical. क्यूबिकल वेसल आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल का छोटा होगा क्यूबिकल से। मेजरमेंट 7 दिया हुआ है। इसमें 10 मिनट रनिंग टाइम इज ऑन एंड इट इज टाइम फॉर योर क्लियरिंग डाउट्स. इफ देयर इज एनी डाउट इज लेफ्ट, यू कैन क्लियर मी. 22 बता दे एक बार, 22/27 कैसा है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ देखिए, 2 pi RH is written here. 2 pi वैल्यू 22/7 एंड रेडियस देखिए यहाँ डायमीटर दिया है 7, तो
I have written 7/2. मैंने रेडियस के जगह पे 7/2 लिखा है क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, और एज height is 7 centimeter already given, so written. And calculation you can simplify this one by yourself, how you want to simplify. जैसे आप कटाना चाहते हैं कटा के कर लीजिए. Okay, and anything other? हाँ बोलिए, क्या पूछते हैं? पहले सेंटेंस में टीएसए है कि एलएसए है? एलएसए दोनों में है, टीएसए नहीं पूछा है, एलएसए पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है आपसे. ओके, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है तो हम टीएसए क्यों निकालेंगे? अच्छा ये थोड़ा सा ढक गया है, नहीं दिख रहा है ना? ओहो, अब आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर कर दो. वैसे नहीं, अब दिख रहा है? बोलिए. हाँ, सिलिंड्रिकल लिखे हैं. बोलिए, दिख रहा है ना? सेकंड सबको बोलिए, स्पीक क्लियरली. आप अपनी बात क्लियर बोलिए. Everything is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And now question number 7. Question number 7 is a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? Students, आपको कल मैंने बताया था कि क्लोज सिलिंड्रिकल जो टैंक है वो उसमें टॉप और बॉटम ऐड हो जाता है 2 pi RH में. दिस इज cylindrical shape. You can see this one cylindrical, but if it is closed, then we need 2 circles of same radius to cover both side. Both end को cover करने के लिए 2 सर्किल की जरूरत पड़ेगी. तो आपको पता है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यदि क्लोज्ड है तो उसका होगा 2 pi RH plus 2 pi R स्क्वायर. लिखे हैं आप, तो उसी में रख देंगे. टीएसए आप क्लोज सिलेंडर निकालिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए. ओके, और दैट इज योर आंसर. जो टीएसए आप निकालोगे वही आपका आंसर होगा. इसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है. एयर इज गिवन 7 मीटर रेडियस और हाइट 3 मीटर. हाइट 3 मीटर, 7 मीटर रेडियस. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप टीएसए आप सिलेंडर निकाल सकते हो कि नहीं? बोले, ये होमवर्क देना चाहते हैं? यस सर. आप निकाल लेंगे. फार्मूला आपको बताया गया है 2 pi R in bracket H plus R. H और R is given already in your question. Then no problem. Put the value of R and H in total surface area of cylinder. में आप पुट कर दीजिए, simply आंसर आ जाएगा. Okay. So 7 number is given as a homework. क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए, दे दिया जाए. यू कैन सॉल्व इट. Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 गोइंग टू सॉल्व. Question number 8 बताइए. हाँ, 8 number. I am going to solve question number 8. First of all, you try to understand the question. Question क्या है आप जरूर समझिए. Listen. The lateral surface area of hollow cylinder is 4224 cm square. It is cut along the height and forms a rectangular sheet wide 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. Very good question. ये आपको ऐसा मैंने समझाया है. मैंने बताया है कि रेक्टेंगुलर शीट से सिलेंडर आप बना सकते हो, ऐसे फोल्ड करके बना सकते हैं ना. तो इसमें
इसकी वाइथ दे दिया है। ये सिलेंडर को आपने कट कर दिया एक साइड से, तो ये रेक्टेंगल बन गया। यू कैन सी द रेक्टेंगल। इसकी वाइथ 33 सेंटीमीटर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शीट एंड कर्व सरफेस एरिया इज आल्सो गिवन। हॉलो सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? इसकी कर्व सरफेस एरिया को ही आप क्या कहते हैं? सी कर्व सरफेस एरिया ही 2 पाई RH होता है। आपको बताया था, समझाया था मैं कि ये जो रिंग बन रहा है, ये रिंग 2 पाई R बन गया और ये इसका ब्रेथ जो है हाइट बन गई। तो ब्रेथ तो 33 दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि पेरीमीटर बताइए। तो ब्रेथ आपको रेक्टेंगल का दे दिया है। आप यदि लेंथ निकाल लेते हैं, जो हाइट होगा वही लेंथ होगा। यदि आप लेंथ निकाल लेते हैं तो वही लेंथ और ब्रेथ के हेल्प से आप उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकाल लेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, LSA, here is given lateral surface area of cylinder. LSA of cylinder is equal to 4224 centimeter square. It is given already in question 4224 centimeter square. And आपको पता है ना, बोलिए। LSA आप सिलेंडर को मैंने आपको बताया था कि ये रेक्टेंगल का ब्रेथ इनटू हाइट के, ये रेक्टेंगल का 2 पाई R इंटू H होता है। ये क्या होता है बेटा? 2 पाई R इंटू H इक्वल टू 4224। ये फार्मूले में तो हो गया। और ये जब करेंगे रेक्टेंगुलर शीट का ब्रेथ 33 सेंटीमीटर है, तो ये ब्रेथ जो है 33 है, 2 पाई RH पूरा दिया हुआ है। तो इसमें आप एज के जगह पे आप ब्रेथ कर सकते हैं, यानी पेरीमीटर इंटू ये 2 पाई R इंटू H लिखने का मेरा मतलब है ये दिया हुआ है 33। तो लेंथ, इसको रेक्टेंगुलर शीट है तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ भी कह सकते हैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ ही ये कर्व सरफेस एरिया बन रहा है। तो 4224 ये लेंथ इंटू ब्रेथ होगा और ब्रेथ 33 दिया है। लेंथ आपको पता नहीं है तो लेंथ आप निकाल देंगे। आपको समझा दें, सिलेंडर बनाकर यहाँ समझा देते हैं, बिल्कुल तब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये 2 पाई R इंटू H है, ये लेंथ हो गया और ये, हाँ, ये हाइट एक लेंथ हो गई और एक ब्रेथ हो जाएगा। ये 2 पाई R जो है ये एक ब्रेथ या लेंथ कोई भी आप ले सकते हैं। एक लेंथ है, एक ब्रेथ है। ये 33 दिया है